پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بغض میں اتنے حد نہ کراس کرے. میری سب سے درخواست ہے، یہ ملک اور قوم کے فائدے کے لیے نہیں ہے، یہ جمہوریت کے فائدے کے لیے نہیں ہے. اپنے لوگوں کے ساتھ ایسے ناانصافی کرنے کے غلط نتائج اثر ہوتے ہیں. یہ ملک اور قوم پہ اثر انداز نہ ہو. مہربانی کرے، ہماری چیف جسٹس سے التماس ہے کہ آپ انصاف ہوتا ہوا نظر کرنے کے لیے تو کریں. پاکستان تحریک انصاف نہ صحیح، یہ پارلیمنٹیرین نہ صحیح، یہ اس ملک کے شہری ہے، ان کے بنیادی حقوق ہے. ہم چیف جسٹس سے برملا اور پرزور اپیل کرتے ہیں کہ اپنے عدالتوں پہ تو نظر رکھے. آپ کنسٹیٹیوشن بینچ کا حصہ نہ ہوتے ہوئے بھی اس عدلیہ کے سربراہ ہیں اور عدلیہ کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. اور دوسری یہ بھی کہ اس کی کیا امپلیکیشنز ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرینز اور ممبر آف دی اسمبلی کی کیا سٹیٹس ہے. سب سے پہلے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس فیصلے سے بہت ناانصافی ہوئی ہے. اس فیصلے سے مایوسی اور دکھ ہوئی ہے، کیونکہ ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم ہمیں یہ امید ضرور تھی کہ شاید ہمارے 39 نامینیز جس کا نوٹیفیکیشن ہو چکا تھا بائی دا الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق، اور اس آرڈر کے مطابق 2 مرتبہ ایکسپلینیشنیں آ چکی تھی، اور وہ ایکسپلینیشن اور وہ 39 کی نوٹیفیکیشن کسی نے چیلنج نہیں کیا تھا. تو یہ امید ضرور تھی ہمیں کہ شاید ٹو دیٹ ایکسٹینٹ ہمیں ہماری ریزرو سیٹیں ملے گی. باوجود اس کے کہ پارلیمان میں بیٹھے جو لوگ ہیں 180 سیٹیں پاکستان تحریک انصاف کی جیتی ہوئی تھی، اور ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے ان لوگوں کو جن کو بہرحال ایوان میں ہونے کا دعویٰ حاصل ہے لیکن ان کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، اس کے باوجود یہ سیٹیں ہماری تھیں اور سپریم کورٹ کے 8 جج صاحبان نے یہ ہمیں دے دی تھی. سپریم کورٹ کے مروجہ اصول کے مطابق کوئی بھی لارجر بینچ بیٹھتا اور ریویو کرتا اور سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھتی اور سپریم کورٹ فل کورٹ بیٹھ کر کی ریویو کرتی تو ہمیں اعتراض نہ ہوتا، لیکن اس طریقے کو اڈاپٹ نہیں کیا گیا. ہم نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ پہلے اس سے کہ ریزرو سیٹوں کا فیصلہ ہو. 26ویں ترمیم جو عدلیہ کے خلاف ایک سازش کے طور پہ آئین منظور کروائی گئی تھی، ہم نے کہا تھا سب سے پہلے 26ویں ترمیم کا فیصلہ ہو. وہ بینچیں ایسے بنے جس میں ساری سپریم کورٹ کی ججز ہو، پہلے 26ویں ترمیم کا فیصلہ ہو اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے سارے ججز بیٹھ کے ہمارے ریزرو سیٹوں کا بھی فیصلہ کر لیں. آئین کی تشریح درکار تھی آرٹیکل 51 کی. اگر 8 ججز کی تشریح میں کوئی ابہام تھا تو وہ فل کورٹ آف سپریم کورٹ بیٹھ جاتی تو ختم کرتی. یہ تاریخ کی کتابوں میں، قانون کی کتابوں میں کبھی نہیں سنا تھا کہ 13 ممبر ججمنٹ کوئی 7 ممبر ججز سیٹ اسائڈ کر سکتے ہیں. سپریم کورٹ کا کبھی ایسا طریقہ کار نہیں رہا. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے پاکستان تحریک انصاف دن رات کوشش کرتی ہے کہ ہم قوم کو یکجا کرے، ہم جمہوریت کو مضبوط کرے، لیکن بدقسمتی سے قاضی فائزہ صاحب کا سایہ ہمیں چھوڑ نہیں رہی، جس سے ہمیں دکھ اور افسوس ہوا ہے اس فیصلے سے. اب اس کی ایک وضاحت کروں گا کہ اس کے بعد ہم کہاں کھڑے ہیں، کیونکہ کوئی لوگ اس کو مس انٹرپریٹ نہ کرے. آپ کو میں کچھ فیکٹس اینڈ فگر تاریخوں کے ساتھ دیتا ہوں زیادہ ایکسپلینیشن کے لیے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کے 859 کنسٹیچوئنسی پہ 850 کنسٹیچوئنسی پہ ہم نے الیکشن لڑا تھا. ہمارا مینڈیٹ چوری ہی صحیح، لیکن جو ہماری سیٹیں جو نوٹیفائیڈ ہوئی تھی، جو ہم جیت چکے تھے، وہ ہماری سیٹیں ایسی تھیں کہ ہمیں 13 جنوری کو جو آزاد نشانات الاٹ ہوئے تو الیکشن کمیشن نے 15 فروری کو ہمیں آزاد نوٹیفیکیشن کا ایک نوٹیفیکیشن کیا کہ یہ آزاد کینڈیڈیٹ ہے. ہم نے 3 دن کے اندر الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے نوٹیفیکیشن سارے ایفیڈیوٹ سبمٹ کر کے سنی اتحاد کونسل کو ہم نے جوائن کیا. سنی اتحاد کونسل کا ڈاکومنٹیشن 772 پیجز پہ مشتمل ڈاکومنٹیشن ہم نے فائل کیا، جس کی تعداد یہ تھی: نیشنل اسمبلی کے 86 ایم این ایز، پنجاب اسمبلی کے 107 ایم پی ایز، کے پی اسمبلی کے 90 ایم پی ایز، سندھ اسمبلی کے 9 ایم پی ایز کی ڈاکومنٹیشن فائل ہوئی. نیشنل اسمبلی میں جن نوٹیفیکیشن کے خلاف کسی نے ریپریزنٹیشن الیکشن کمیشن میں فائل نہیں کی تھی،
22 फरवरी को इलेक्शन कमीशन ने 78 सीटें छोड़ के, 78 सीटें जो हमें मिलनी थी उसको छोड़ के बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपनी जीती हुई सीटें, जो कि नहीं जीती हुई थी लेकिन बराए नाम जीती हुई सीटों पे जितने रिजर्व सीटें उनकी मिलती थी, इनको वो सीटें दे दी। बाकी सीटें हमारी थी। ये सीटें खाली भी रखी जा सकती थी, लेकिन हम पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि पॉलिटिकल पार्टीज को उनकी जीती हुई सीटों से या बराए नाम जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें मिली है इस मर्तबा। अब हमने इलेक्शन कमीशन को एक दरखास्त दी और वो दरखास्त हमने अप्रैल 2024 को दी थी, और जिस वक्त नेशनल असेंबली में हम पार्लियामेंट्री लीडर को अपॉइंट करना चाह रहे थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के प्लेटफॉर्म से, तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन नहीं किया था और सेक्रेटरी नेशनल असेंबली ने हमें कहा कि हम आपका पार्लियामेंट्री लीडर नहीं बल्कि आपको एक इंडिपेंडेंट ग्रुप के तौर पे नोटिफाई करेंगे। हम इलेक्शन कमीशन गए और इलेक्शन कमीशन ने हमारे 86 एमएनएस का नोटिफिकेशन 25 अप्रैल 2024 को इशू किया था। मैं वाज़ेह करना चाहता हूं, हमारा नोटिफिकेशन आज भी इंटैक्ट है। इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे भी वो नोटिफिकेशन इंटैक्ट है। किसी के दिल में, किसी की व्यू में ये अबहम ना रहे कि कल के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कैंडिडेट जो आज़ाद थे वो आज भी आज़ाद है। नहीं, वो सारे कैंडिडेट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में थे, हैं और उसी के अंदर रहेंगे, क्योंकि ये हमने 63A के मुताबिक ये नोटिफिकेशन के लिए दरख्वास्त दे दी थी और हमारी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एज अ पार्लियामेंट्री पार्टी इंटैक्ट है। 25 अप्रैल 2024 को जब ये नोटिफिकेशन हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने अभी हमारे 3 और नोटिफिकेशन करने थे। केपी के असम्बली के नोटिफिकेशन, पंजाब असम्बली के एमपीए के लिए नोटिफिकेशन, सिंध असम्बली के एमपीए के लिए नोटिफिकेशन, जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद को शामिल किए हुए थे उनका नोटिफिकेशन करना था। बट सुप्रीम कोर्ट के 6 मई 2024 के स्टे ऑर्डर आने के बाद वो प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ने रोक लिया था। लिहाजा हमारे सारे एमपीएज और एमएनए सुन्नी इत्तेहाद में जिन्होंने ज्वाइन किया था वो कंटिन्यू करते हैं सुन्नी इत्तेहाद में, वो इंडिपेंडेंट नहीं है, वो उस पार्टी में है। और इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करते हैं कि बाकी तीनों सूबों के भी नोटिफिकेशन जल्द इशू किए जाए। इसलिए हमारे ये एक व्यू था कि हम आपके साथ शेयर करें कि वो उस पार्टी में रहे हैं, कोई आज़ाद नहीं है। कोई ऐसा ना कहे कि कोई ग्रुप बनेगा कोई और है या ये आज़ाद है तो इसलिए वो सुन्नी इत्तेहाद में थे और इसके हिसाब से रहेंगे। फर्क सिर्फ इतना था कि इन एमपीए एमएनएस के बिहाफ पे और इन एमएनएस को हम रिजर्व सीटें मांग रहे थे, जो रिजर्व सीटें हमें नहीं मिली। दूसरी बात जो करना चाह रहे हैं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के साथ रहे, कौम के साथ रहे, जमहूरियत के साथ रहे, लेकिन वो रूह हमें छोड़ नहीं रही। अदलिया से हमें मायूसी हुई है। खान साहब ने इंसाफ के नाम पे ये तहरीक शुरू की है, 27 साल से इसके लिए कोशिश की। जब खान साहब ने इसकी बुनियाद डाली तो रूल ऑफ लॉ और जुडिशरी कारकर्दगी में पाकिस्तान 90वें नंबर पे था। आज पाकिस्तान 129 नंबर पे है। इसका मतलब यह है कि इंसाफ का हसूल आज जितना मुश्किल है 1996 में इतना मुश्किल नहीं था। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जब दुनिया ने हर फील्ड में तरक्की की, बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान के अदलिया और जुडिशरी में कोई प्रोग्रेस नहीं आ सका। लोगों को बरवक्त और इंसाफ होता हुआ क्या ना इंसाफी लोगों को मिली। इस पे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन स्ट्रगल कंटिन्यू करेंगे। और इसकी जिंदा मिसाल ये है कि अब हमारे पार्लियामेंट्री लीडर्स भी समेत हमारे केसेस चल रहे हैं, जिसमें हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट शिबली फराज साहब भी एक्यूज्ड है, जिसमें उमर अयूब खान साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असेंबली भी एक्यूज्ड है। जज साहब टाइम नहीं दे रहे, जज साहब केसेस चला रहे, 9 बजे तक चला रहे। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बुग़्ज़ में इतने हद ना क्रॉस करें। मेरी सबसे दरख्वास्त है, ये मुल्क और कौम के फ़ायदे के लिए नहीं है, ये जमहूरियत के फ़ायदे के लिए नहीं है। अपने लोगों के साथ ऐसे नाइंसाफ़ी करने के गलत नताइज असर होते हैं, ये मुल्क और कौम पे असरअंदाज ना हो। मेहरबानी करें, हमारी चीफ जस्टिस से इल्तिमास है कि आप इंसाफ होता हुआ नज़र करने के लिए तो करें,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सही, ये पार्लियामेंटेरियन ना सही, ये इस मुल्क के शहरी है, इनके बुनियादी हकूक़ है। हम चीफ जस्टिस से बरमला और पुरजोर अपील करते हैं कि अपने अदालतों पे तो नज़र रखे। आप कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का हिस्सा ना होते हुए भी इस अदलिया के सरबराह हैं। हम लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से मुतालबा करते हैं, पुरजोर मुतालबा करते हैं कि आप आईनी बेंच ना होने के बावजूद भी उस अदलिया के आर्टिकल 203 सुपरविजन आपका फर्ज है, उस अदालत के अहकामात मनवाना भी आपका फर्ज है, लेकिन उनको आईन और कानून के मुताबिक अदलिया के लिए कानून के मुरव्वजा असूलों के मुताबिक इंसाफ की फराहमी आपकी आईनी जिम्मेदारी है। मेरा आपसे भी दरख्वास्त है कि बराह मेहरबानी लोअर कोर्ट्स को हिदायत इशू की जाए, डायरेक्शन इशू की जाए, हमें आप डिस्क्रिमिनेट ना करें। ये दिन गुजर जाते हैं लेकिन लेगेसी लोग छोड़ जाते हैं। मुल्क को अंधेरों में ना धकेले, मुल्क में देरे में चला जाता है जब इंसाफ ना हो और इंसाफ होता हुआ नजर ना आए। मेरी सबसे दरख्वास्त है इस पे गौर करें। आपके कंपोजिट क्वेश्चन है। सबसे पहली बात तो यह है कि यस, वाकई स्वात में जो वकूआ हुआ है उस पर हमें बहुत सख्त अफसोस है। उनके जो ख़ानदान है उनसे हमने दिली ताज़ियत की है, कल की है, और सूबाई हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करती है और इंक्वायरी का ऑर्डर भी हुआ है। देखो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ही हुकूमत है, वो KPK में है। उनके पास एक ही हेलीकॉप्टर है, जो हेलीकॉप्टर वज़ीर आला ने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया। आप लोगों ने देखा है, कभी भी उसने इस्तेमाल नहीं किया है, बल्कि वही हेलीकॉप्टर जो मौजूद थी वो अभी एयर एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल हो रही है। ये पहला वकूआ नहीं है। इसी तरह का वाक़या जो हमारी हुकूमत नहीं भी थी, आपको याद होगा उस वक्त भी हुआ था कोहिस्तान में, उस वक्त भी लोग नहीं बचाए गए थे। मैं समझता हूँ ये NDMA की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले हैं वो इनके लिए ऐसे हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त ज़रूर किया करे कि अगर ऐसी बारिश हो, तूफ़ान हो, तो वो वहाँ जा भी सकता हो और वो हेलीकॉप्टर उड़ान भर भी सकता हो। KPK के साथ अगर ऐसी है तो वो शरणीय है, इसलिए हमें सख्त अफसोस है उस पर, और KPK हुकूमत सब कुछ वो कर रही है।